راولپنڈی ریڈ کریسنٹ ہاسپٹل میں ورلڈ ہیلتھ الائنس اور لیپ کے تعاون سے ہیپاٹائٹس ٹیسٹنگ ویک منایا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی حاجی نعیم صاحب نے ربن کاٹ کر اس کا افتتاح کیا۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر انصر اسحاق، مسلم لیگ نون کے رہنما منصور بیگ اور دیگر کارکن بھی موجود تھے۔ اس موقع پر حاجی نعیم اور مسلم لیگ کے رہنما منصور بیگ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریڈ کریسنٹ ہاسپٹل جو کہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر بند پڑا ہے، اسے دوبارہ سے چلانے کے لیے اور یہاں پر وہ عملہ جسے نامعلوم وجوہات پر یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے انہیں واپس لایا جائے گا اور غریبوں کی مدد کے لیے یہ ادارہ دوبارہ کام کرے گا۔ حاجی صاحب نے یہاں غریبوں کے مفت علاج کے لیے مشینری اور دیگر سہولیات کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی کہ وہ جہاں تک ہو سکے گا غریب عوام کی مدد کریں گے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے کافی محنت کی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اس میں بڑھ چڑھ کر محنت کریں گے۔ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہر وقت جو بھی ہم سے ہو سکا ہم اس میں اس کی ہیلپ بھی کریں گے اور اس ادارے کو انشاءاللہ چلائیں گے اور یہاں سے لوگ مستفید ہوں گے اور صحت یاب ہوں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ اس مہم پہ آپ نے سب سے زیادہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے بہت محنت کی ہے سب کے سامنے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکتا؟ ابھی بھی کتنے سارے کیسز نکل آتے ہیں۔ آج اصل میں جو ہے ورلڈ ہیلتھ الائنس کے تعاون سے اور لیگ کے تعاون سے، لوکلائزڈ ہیپاٹائٹس ایلیمنیشن اینڈ پریونشن پروگرام کے تعاون سے یہ ٹیسٹنگ ویک منایا جا رہا ہے۔ اور اس کے تحت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تھا پچھلے سال جولائی میں، اور اس میں ہم نے ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کی اسکریننگ شروع کی تھی، کیونکہ ہاسپٹل آنے میں لوگ گھبراتے ہیں اس ٹیسٹ کے لیے۔ تو ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا حاجی صاحب کے تعاون سے کہ ہم جو ہے لوگوں کے گھر گھر جائیں اور ان کو وہاں پہ جا کے تو موٹیویٹ کریں کہ یہ بیماری جو ہے یہ چھپی ہوئی بیماری ہے، ہڈن بیماری ہے، جس کا آخری سٹیجز میں جا کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے جب ان کو لیور کینسر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی اسکریننگ کریں۔ تو ہم اس وقت تک ایک سال میں تقریباً 47,000 لوگوں کی اسکریننگ کر چکے ہیں ڈور ٹو ڈور جا کے۔ 1500 اس میں سے پازیٹیو آئی ہیں اور ان کا علاج یہاں پہ ہم فری کریں۔ جو یہاں پہ سویٹ پیلس ہے اس کے اونر چودھری ظفر انور صاحب، انہوں نے تو آج تک پچھلے 20 سالوں میں حاجی صاحب نے اور انہوں نے ہر جگہ کے اوپر ویلفیئر کے کام میں لبیک کہا ہے، انہوں نے پورا تعاون کیا ہے۔ اس کے علاوہ فریشنر سویٹ کے مالک ہیں حاجی امتیاز صاحب، وہ ریفریشمنٹ سینٹر کے مالک ہیں یہاں پہ حاجی ممتاز صاحب، وہ پھر پاکیزہ مرغ کے مالک ہیں فاروق صاحب۔ ان سب بھائیوں کا ہمارے ساتھ تعاون ہے۔ شہنشاہ ٹکا ہاؤس کے مالک جو ہیں کیانی صاحب، ان سب کا، اور یہ بھرپور تعاون ہمارے ساتھ کرتی ہے جب بھی ہمیں کوئی ضرورت ہو۔ یہ ہم نے صرف منہ سے بات نکالنی ہے اور انہوں نے پوری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا جس حساب سے یہ ہمارے ساتھ یہ تعاون کر رہے ہیں۔ اور آئندہ امید رکھتے ہیں کہ جو ہماری ڈور ٹو ڈور اسکریننگ ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایک WHO کا ویژن ہے کہ 2030 تک ہیپاٹائٹس فری کرنا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ساروں کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ WHO کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کا پہلے نمبر کا ملک بن گیا ہے جہاں پہ ہیپاٹائٹس سی سب سے زیادہ ہے، اور ہم اب تک ڈینگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرف ابھی تک توجہ کوئی نہیں ہے۔ ہماری CM صاحبہ کا تو ویژن ہے کہ یہ ہم اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس پہ قابو پا سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے۔ مجھے امید ہے کہ وہ صحتیاب ہو کے آتی ہیں تو وہ اس چیز کے اوپر توجہ دیں گی اور اس میں بھرپور تعاون کریں گی ہمارے۔ جب کبھی کوئی بات ہوتی ہے اپلائی کام کے لیے، سماجی کام کے لیے، ہم بھرپور تعاون کرتے ہیں اور آئندہ بھی ان سے بھرپور تعاون کریں گے۔ جن لوگوں نے آپ سے تعاون نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کہوں اور آپ کی ٹیم سے کہوں گا کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا انہوں نے بیسیکلی اس کار خیر میں حصہ نہیں ڈالنا، تو نہ انہیں توفیق ہے کہ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میرے پروردگار نے چاہا تو یہ ریڈ کریسنٹ اور دیگر فلائی کام ڈاکٹر صاحب اور نعیم صاحب کر رہے ہیں، ہم سب ان میں مکمل تعاون کریں گے اور بھرپور طریقے سے اپنا تعاون اس میں جاری ساری رکھیں گے۔ باقی راولپنڈی شہر میں ابھی بات کی آپ نے کہ اتنا کیوں پھیل رہا ہے، تو سب سے بڑی بات ہے پینے کا صاف پانی، وہ ہمیں میسر ہونا چاہیے، جو بنیادی ضرورت ہے ہمارے لوگ۔ میں اس حکومت کا حصہ ہوں، لیکن اپنی حکومت میں تنقید نہیں کرتا، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جن پہ ان کو فوکس کرنا چاہیے۔ اور راولپنڈی شہر میں
माशाल्लाह बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे लोगों के, लेकिन इस कार्य खैर में और इस काम की तो जो बहुत कम लोग दे रहे हैं। अगर मेरे पास में हुआ, नईम साहब के पास में हुआ, डॉक्टर साहब के पास में हुआ और उनकी टीम के पास में हुआ, तो हम इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले प्रायोरिटी पीने के साफ पानी को देंगे और उसके बाद बुनियादी जो हमारा हक बनता है सेहत के हवाले से, तलीम के हवाले से हम इन्हें फोकस करेंगे। जो यहाँ पे स्वीट पैलेस है एक, उसके ओनर चौधरी जफर अनवर साहब, उन्होंने तो आज तक पिछले 20 सालों में हाजी साहब ने और उन्होंने हर जगह के ऊपर वेलफेयर के काम में लंबैक का उन्होंने पूरा ताउन किया है। इसके अलावा फ्रेशो स्वीट के मालिक हैं हाजी इम्तियाज़ साहब, वो रिफ़्रेशमेंट सेंटर के मालिक हैं यहाँ पे हाजी मुमताज़ साहब, वो फिर पाकीज़ा मुर्ग के मालिक हैं फारूक साहब। इन सब भाइयों का हमारे साथ ताउन है। शहनशाह टिक्का हाउस के मालिक जो हैं क्यानी साहब, इन सब का, और ये भरपूर ताउन हमारे साथ करती है जब भी हमें कोई ज़रूरत हो। ये हमने सिर्फ मुंह से बात निकालनी है और इन्होंने पूरी करनी है, और अल्लाह ताला इनको इसका अजर देगा जिस हिसाब से ये हमारे साथ ये ताउन कर रहे हैं। और आइंदा उम्मीद रखते हैं कि जो हमारी डोर टू डोर स्क्रीनिंग है, और हम ये चाह रहे हैं कि जो एक WHO का विज़न है कि 2030 तक हेपेटाइटिस फ्री करना है। यहाँ पे मैं आपको सारों को एक चीज़ ये बता दूँ कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का पहले नंबर का मुल्क बन गया है जहाँ पे हेपेटाइटिस C सबसे ज़्यादा है, और हम अब तक डेंगू के पीछे पड़े हुए हैं। इस तरफ अभी तक तवज्जो कोई नहीं है। हमारी CM साहबा का तो विज़न है कि ये हम इसको जितना जल्दी हो सके इस पर काबू पा सकें, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला उनको सेहतियाब करे। मुझे उम्मीद है कि वो सेहतियाब होकर आती हैं तो वो इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देंगी और इसमें भरपूर ताउन करेंगी हमारे। ये सवाल था ना कि ये फैल क्यों रहा है, उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि हेपेटाइटिस B और C जो है ना, वो अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट और सिरिंजेस को बार बार जो क्लिनिक्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे होम डिलीवरीज जो लोग करवाते हैं। पिंडी के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, उनमें अभी सेंस नहीं है। फिर डेंटल क्लिनिक, वहाँ पे भी स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं होते और हम लोग वहाँ पे जाते हैं। बार्बर शॉप्स पे हम वहाँ जाते हैं, और उनके खिलाफ जिस वक्त तक प्रॉपर एक्शन नहीं होगा ये चीज़ नहीं रुक सकती है। और उन पे एक्शन किसने लेना है? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने लेना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के नोटिस में 3 बार ला चुका हूँ कि सिटी सदर रोड पे जाएं और जाके देखें राइट साइड के ऊपर डेंटिस्ट बैठे हुए हैं जो सड़कों पे बैठ के लोगों के दांत निकाल रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। और मुझे ये नोटिस में लाते हुए 4 से 5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये जिस वक्त तक सारे इदारे मिल के नहीं चलेंगे और अपना अपना रोल अदा नहीं करेंगे, ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। और सर, ये जो डोर टू डोर पहले कैंपिंग चल रही थी हेपेटाइटिस के हवाले से, तो अभी भी चलेगी आगे, क्योंकि बंद हो गई है? नहीं, तो नहीं, आगे बंद का नहीं क्या हुई है है, इसका? बंद नहीं हुई है। मैं आपको इस सिलसिले में ये बता दूँ, जिस तरह अभी हाजी नईम साहब ने बात किया कि वेलफेयर का काम है, और मिर्ज़ा मंसूर बेग साहब ने बात किया कि वेलफेयर का काम है, इसको चलाता अल्लाह ताला है। जी बिल्कुल। किसी नेगेटिव सोच से ये काम बंद नहीं होते। डॉक्टर अंसर ने हेपेटाइटिस की मुहिम की रोकथाम के लिए जो कैंपिंग चलाई गई थी उसके हवाले से बात करते हुए बताया कि अभी तक कितने फ़ीसद लोगों का इलाज हो चुका है और कितने फ़ीसद लोगों को मुफ्त अद्वियात दी जाती हैं। हुकूमत की तरफ से तो ये मुहिम सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन डॉक्टर अंसर ने अपनी मदद आपके तहत और कुछ मुखय्यर हजरात की मदद से ये काम जारी रखा। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर इजाज भी मौजूद थे। उन्होंने डॉक्टर अंसर के काम को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया और कहा कि डॉक्टर अंसर ने बड़ी मेहनत और डोर टू डोर जाकर हेपेटाइटिस की रोकथाम की मुहिम के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि जो स्टाफ यहां से ट्रांसफ़र किया गया है, जिनमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद थे, उन्हें वापस लाने के लिए सेक्रेटरी हेल्थ और CO रावलपिंडी से बात करेंगे। हेपेटाइटिस की रोकथाम में जो काम हो रहा था वो रोक दिया गया है। इसके डोर टू डोर जो कैंपिंग हो रही थी वो क्यों रोक दी गई है? स्टाफ क्यों वापस लिया गया? स्टाफ क्यों वापस भेज दिया गया, और मजीद इसमें क्या इक़दाम किए जाएंगे या रोक दिया जाएगा, उस हवाले से बताएं, हमें ज़रा ब्रीफिंग दें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हेपेटाइटिस जो है C वो जो बहुत बड़ा एक यूज देखिए इम्पोर्टेंट है, और मतलब एज डॉक्टर ये कि मतलब देखें ये इस तरह का मर्ज है कि जानलेवा मर्ज है। अगर हमने इसी को मतलब छोड़ दिया तो बहुत नहीं लाश होगा, जानी लाश होगा। यहाँ पे तो काम बड़ा ठीक है, और यहाँ पे लोगों को मेडिसिन भी मिल रही है, टेस्टेड हो गई है। अब ये हुआ यूँ कि CO साहब, मैं मतलब CO था,
तो मैंने ये पूरी सपोर्ट की हुई थी। अब जैसे कि मैं CEO नहीं हूँ, तो नया CEO था तो नए CEO की अपनी पॉलिसी थी, तो उन्होंने शायद की बात एक स्टाफ वगैरह चीज़ों को लेकर मतलब लोगों के पास कोई एक प्रोग्राम है, तो लिहाजा मैंने मतलब CEO साहब से बात भी की है, तो हम ये देखते हैं अगर मतलब कोशिश करके उसको दोबारा के बाद कर गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा था और आपने इसको रोक दिया है। महकमे हेल्थ के आपके जो हैं सीनियर हैं, उन्होंने इसकी क्या वजूहत है? क्योंकि जहाँ तक कि मेरी ज़ात के साथ इसका मतलब एक ताल्लुक है, मैंने तो उसको फुल सपोर्ट की। डेफिनेटली जब CEO मतलब चेंज हुआ तो मतलब CEO की अपनी भी एक पॉलिसी होती है। अब उस मतलब CEO का जवाब तो मैं आपको ये नहीं दे दूँगा, लेकिन मैं अपना जवाब जरूर दूँगा कि अगर मैं होता तो यहाँ पे हेपेटाइटिस B का काम जारी होता। तो सर आपकी मौजूदगी में इस पर कितना के काबू पाया गया है, कितने इकदाम हुए हैं, कितने लोगों का इलाज हुआ है, कहाँ तक लोग आप पहुँचे हैं, टीमें कहाँ तक पहुँची हैं? ये तो मतलब UC वाइज इन्होंने मतलब शुरू किया था, जिसमें लोकल NGOs की भी सपोर्ट थी जी। अभी तो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत इन्होंने काम शुरू किया है, तो इन्होंने काफ़ी मदद सेटिस्फैक्ट्री किया है। इधर तो यहाँ से उनको दवाई भी है, इन्वेस्टिगेशन भी है। जो मुश्किल चीज़ें यहाँ पे एक PCR है, PCR और अल्ट्रासाउंड, ये दोनों जो मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ से PCR भी उनका फ्री हो रहा है और उनका अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है। लेकिन ये प्रोग्राम रुका नहीं है, ये तो अभी इनकी सेल्फ जो इनकी है अपनी मदद आपके तरफ ये प्रोग्राम जारी है। लेकिन सर ये तो गवर्नमेंट की तरफ से होता है ना, एक टीम जो काम कर रही होती है वो तो हुकूमत की तरफ से होती है, लेकिन अगर CEO चेंज हो गया या जो भी हुआ तो टीम क्यों वापस तरफ से ये है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से कि वो CEO साहब वो मतलब कहते हैं कि हमारे ये प्रोग्राम TSQ के लिए है। अब TSQ भी है वो जो हमारी तहसील लेवल है वहाँ पे भी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के लिए तो ये होना बड़ा जरूरी था। अब क्योंकि TSQ वाले तो अपनी एक तहसील को देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोग्राम बड़ा अच्छा था, जरूरी था, तो इसी को मैं तो चाहूँगा कि मतलब इसी को वही कंटिन्यू किया जाए। इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन चला रहा है अब? जी हाँ, अभी डॉक्टर अंसर साहब हैं जो अभी इस पूरे डिपार्टमेंट को वही मदद ला रहा है और अपनी मदद आपकी तरफ यस ट्रीटमेंट भी जा रही है, PCR भी हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड भी हो रहे हैं। लोग दूर दराज जाते हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं, उसके लिए कोई हद बंदी नहीं है। जिधर से जिस डिस्ट्रिक्ट से जिस तहसील से जो बंदा आता है दूर से, उनको ट्रीटमेंट ये मिलती है यहाँ जी। यानी डॉक्टर अंसर की काविश है, बिल्कुल ये रुका नहीं है, ये मुहिम रुकी नहीं है, चल रही है, अभी भी जारी है, उनकी मदद है जी। स्टाफ यहाँ से जो जा चुका है उसको वापस लाएंगे, आपने क्या, आपका क्या किरदार होगा इसमें? अब क्योंकि मैं तो फिर CEO साहब मतलब CEO साहब को ये कहूँगा, लिहाजा फिर ये इन्होंने मतलब कितने गरीब लोगों का इलाज मुफ्त हो रहा है और आपके सामने यहाँ देखने लोग खड़े हैं, लेकिन स्टाफ नहीं है इनके पास। बिल्कुल सही बात है, इनके पास वो ये के इश्यूज हैं, जो स्टाफ के इशू हैं, तो वो फिर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। तो वो स्टाफ सर आपका एक्सपीरियंस स्टाफ था जो काम कर रहा था ऑलरेडी, तो उन्हीं को वापस बुलाएंगे क्या नए लोग हायर करेंगे? मैं फिर CEO साहब से बात कर कोशिश करते हैं कि यहाँ पे स्टाफ वापस अभी आ जाए। जी 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 सर, कितने लोगों का रोजगार लगा हुआ था तो वो भी बंद हो गया है, कितने लोगों का इलाज हो रहा था फ्री, वो भी रुक गया है। बिल्कुल ठीक, हाँ जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुनने में आया कि यहाँ का जो स्टाफ है वो आपके प्राइवेट अपने घरों में आपने लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप स्टाफ देने पे कासिर हैं, को स्टाफ नहीं दे रहे। मेरे नोटिस में ये बात नहीं है कि मतलब किसी के घर में है या नहीं है, लेकिन मेरे घर में कम से कम नहीं है। और सर डेंगू के हवाले से बात करेंगे कि डेंगू की मुहिम में जो अमला लगाया गया है, क्या आपको लगता है कि वो हेपेटाइटिस से ज्यादा यानी वो इम्पोर्टेंट है कि ये वाला सारा अमला यहाँ से हटा दिया गया लेकिन वहाँ पे सब काम कर रहे हैं, उस हवाले से बताएं। यहाँ के लिए तो ना आपको स्पेसिफिक मतलब बंदे चाहिए, उसमें वो डेंगू प्रोग्राम याद नहीं है, उसके लिए तो आपको स्टाफ नर्स चाहिए, उसके लिए तो आपको LHC चाहिए, उसके लिए तो आपको लैब वाले बंदे चाहिए, उसके लिए तो आपको डॉक्टर चाहिए, वो मतलब दीज आर वेरी स्पेसिफिक, तो इसी में तो ये वेरिएशन आ सकती है। लेकिन सर खतरनाक तो दोनों ही है, दोनों ही मुजरिम हैं इंसानी सेहत के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टाफ ये पहले भी था यहाँ पे, और वो मतलब यहाँ पे तो हमारी बहुत से लोगों ने काम भी किया, लेकिन बस वो जैसे CEO साहब चेंज हो गए तो उसने अपनी पॉलिसी ले आए, तो मैं उनसे बात जरूर
ये सीओ की पॉलिसी पे चलेगा या पंजाब हुकूमत की या लोगों के हवाले से? ये सवाल जैसे तो सीओ साहब का पड़ता है, तो आप सीओ साहब से करें। नहीं, आप तो माशाल्लाह डायरेक्टर हैं ना सर, उनसे सीनियर हैं, आप बता सकते हैं ना कि ये मैं तो फुल सपोर्ट में हूँ कि ये देखिए ना, ये मतलब ना डॉक्टर अंसर का इशू है ना मेरा ना आपका, ये आम ये लोगों का इशू है। आम बंदा वो जिसको पहली बात है कि खबर नहीं कि उसको DOC है, और वो बंदा जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये तो किसी डॉक्टर का, किसी सीओ का, किसी डायरेक्टर का, DC साहब का, ये किसी का नहीं है। ये तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर जो मतलब ये जिम्मेवारी है एज अ डॉक्टर, वो तो बंदे को पूरी करनी चाहिए। तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि ये अलग ये जो भी है, लेकिन ये तो इस तरह की जो पॉलिसी है। डॉक्टर अंसर साहब का ये ज़ाती काम है हेपेटाइटिस का या अवामी काम है? नहीं, ये तो है तो अवामी काम, इसमें नो डाउट। और अंसर साहब ने जो मेहनत भी बड़ी की है, और बहुत से देखे ना, अगर हदीस पाक की है, जिसने एक इंसान को बचाया गोया उसने पूरी कायनात को बचा लिया। तो अगर ये कि अंसर साहब की कोशिश से या मेरी कोशिश से या किसी और की कोशिश से एक इंसान की जान बचती है, तो पूरी कायनात की जान बच गई। हम सारों की कोशिश तो है, इसमें तो वो नहीं है कि ये देखे ना, जो डिजीज है वो नहीं देखती कि ये हिंदू है कि मुस्लिम, बीमारी है, और हमारा एक जिम्मा है वो एज ये ह्यूमैनिटेरियन इंसान है। यहूदी, काफर, मुसलमान, शिया, सुन्नी, इसका कोई फर्क नहीं है। वो हमारे लिए एज एक मरीज है, और हर बंदे को उसी की हेल्प करनी चाहिए।